Today we are going to discuss about the Keats' Ode to Autumn. This was a poem which he has written during the time of the 1819 at Webster, and it was published 1820. It was a poem which he has written during the time of the 1819 September 22. He writes this poem to his friend Renaud from Webster, and he was too much fascinated by the season of the autumn, which he has presented in his poem, that the season of autumn is how beautiful season and how fine the air is. And further he expressed that the season of autumn is the season of mist and mellow fruitfulness. Many of the poets think that the season of the autumn is a season of destruction and decay, but he has presented the season of autumn as a season of fruitfulness, and he has presented many beneficent activities of it. And further, this poem deserves a comparison with Shelley's Ode to the West Wind, in which there are 2 points of contrast between the poems. Is that Keats has presented the beneficent activities of the autumn as a season of mellow fruitfulness, while other hand the Shelley's poems invokes the destructive agency or the energy of the west wind. In this way, he has presented never about the past and never thinks about the future and the beauty of the season, which attracted him to expressed by him in his own poem, which he felt in his heart and through his blood, which he has presented in his poem. The result of that, a beautiful natural lyric in the forms of the ode come from his pen. And it is a season in which he has expressed that the cooperation of the sun, the whole atmosphere became too much warm, and with the cooperation of the sun and the season of autumn, the fruit became too much juicy and the trees became too much fruitfulness. And further he expressed that the season of autumn is a season of beauty, and it has most of the poets thinks that the season of autumn is a season of decay and destruction, but Keats has presented that the season of the autumn is a season of mist and mellow fruitfulness. And he expressed that in season that the bees, honey bees, collect too much honey in their hives, and they thinks that the season of this will never come to an end. And further in next line he personified the autumn with a farmer who sitting very carelessly in the between of his own grain. And further he expressed that the season of autumn is just like a gleaner. He also here personified the autumn with a gleaner who plows very carefully, making a balance the stream in a very carefully. And also he has personified the autumn with a cider press who look very carefully over by the last drop of the juice. And further he expressed that like a spring, autumn has its own music. By that music, the atmosphere and the situation of the season became too much rich. And he further expressed that the small net mourns in a sorrowful song that the day is now come to an end. And further he expressed that the sunlight during the time of the sinking of the sun, which make the color of rosy, come from the sky, and which flows and the grains which became too much rosy in the forms of that. And he also expressed that the nightingale and the red breast also twitter and whistling in the sky in the time of in the season of the autumn, just like a spring. So the importance of autumn is just like the importance of spring in the life of Keats. Now I am going to explain you the whole poem line by line. Season of mist. Here the season
ऋतु के लिए मिस्ट एक्सप्रेस टू द फॉग आर कुहासा। सीजन ऑफ मिस्ट कहने का मतलब ऑटम इज़ द सीजन व्हेन द मिस्ट गैदर ऑन द ग्राउंड एंड द मार्सी ऑफ द वेट प्लेस इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग। जो सुबह शाम के समय कुहासा होता है उसके लिए एक्सप्रेस किया गया है सीजन ऑफ मिस्ट। आई हियर द वर्ड मेलो, मेलो एक्सप्रेस टू राइप, पका हुआ, एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, फ्रूटफुलनेस मतलब राइपिंग ऑफ फ्रूट इन अ लार्ज नंबर, फ्रूट्स ripen in a large numbers in autumn in England. Mellow fruitfulness, full meaning of it is. And the close bosom friend, here the close bosom express the very intimate friends, यानी कि जिगरी दोस्त की तरह हैं। Of the maturing sun, here maturing express to the sons that ripen fruits, यानी कि एक दूसरे से एकदम मदद करके जो है फलों को पकने में जो मदद करते हैं। नेक्स्ट वर्ड द कॉन्स्पायरिंग विद हिम हाउ टू लर्ड एंड ब्लेस, द कॉन्स्पायरिंग एक्सप्रेस द प्लॉटिंग मेकिंग अ सेक्रेट प्लान, यानी कि आपस में जो है कॉपरेशन करके जो है फलों को पकने में मदद करते हैं। बट हियर इट हैज़ बीन यूज्ड इन अ गुड सेंस, ऑटम एंड द सन आर मेकिंग प्लान्स टुगेदर हाउ टू राइपन फ्रूट्स, यानी कि किस तरह जो है फल पकें, इनके जो है पकने में ये लोग मदद करते हैं। नेक्स्ट वर्ड एंड विद हाउ टू लोड एंड ब्लेस विद fruit veins that rounds the thatchers, here the veins expressed to the veins creeper, जैसे बेल लताएं उनके लिए thatchers यहाँ पे कॉटेज घास फूस के बने छप्पर के लिए यूज किया गया है। eaves, here the word express the corner of the cottage where forms the water flows, जो हिंदी वर्ड में ओरौनी जहाँ से पानी गिरता है छप्पर से उसके लिए एक्सप्रेस किया गया है। टू बेंड विद एप्पल्स एंड द मोस्ट कॉटेज ट्री, मॉस्ट यहाँ पे फुल ऑफ द मॉस कवर्ड विद द मॉस, यानी कि काई लगे हुए पेड़ के लिए कहा गया है। उन पे जो है पूरी तरह से फल लद गए हैं। द हिंदी मीनिंग ऑफ द होल पैसेज इज द सीजन ऑफ द मिस्ट, यहाँ पे ऑटम सीजन को कैसा सीजन बताया गया है, कुहासा भरा, एंड द मेलो फ्रूटफुलनेस, और जो है ऐसा सीजन जहाँ जिस सीजन में फल जो है बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, पके हुए फल, जूसी फल। क्लोज बॉटम फ्रेंड ऑफ द मैचुरिंग सन, और दोनों यहाँ पे क्लोज फ्रेंड हैं, कौन कौन, ये आपका ऑटम सीजन और ये सन। कंस्पायरिंग एक दूसरे से, कोऑपरेशन से, विद हिम हाउ टू लर्ड एंड द ब्लेस, किस तरह सारी जो है पेड़ फूल और फलों से लद गए हैं। विद फ्रूट वेंस, और लताएं जो दैट्स राउंड द दैट्स, जो छप्पर पर फैली हुई वो भी जो है पूरी तरह से फलों से लद चुकी हैं। एव्स रंस, जो रौनी पर चारों तरफ फैली हुई हैं उनमें जो है पूरी तरह से फल लद गए हैं। टू बेंड विद एप्पल्स, यानी कि बेंड यहाँ पे झुक गए हैं, विद एप्पल्स यानी कि एप्पल्स के पेड़ जो है एप्पल्स लगने से उनकी टहनियाँ उनकी डालें जो है झुक गई हैं। एंड मोस्ट कॉटेज ट्री, यहाँ पे मोस्ट काई लगा हुआ एक्सप्रेस, यानी कि जो कॉटेज ट्री यानी कि घर के आसपास में जो काई लगे पेड़ हैं वो भी पूरी तरह से फलों से लग गए हैं। एंड द नेक्स्ट लाइन एंड फेल ऑल द फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर, यहाँ पे कोर एक्सप्रेस किया गया है द कम्प्लीटली फुली पूर्ण रूप से जो है पक गए हैं फल। टू स्वेल द ग्राउंड, यहाँ पे स्वेल एक्सप्रेस टू द फिल द फ्रूट, यानी कि कोर मेक द फ्रूट फुली राइप, एंड द स्वेल टू मेक अ प्लम्प आर फ्लैट स्वेल आउट, यानी कि अंदर से पूरी तरह से फूल गए हैं यानी कि पक गए हैं पूरी तरह से। एंड प्लम्प द हेजल सेल्स, यहाँ पे हेजल सेल्स एक्सप्रेस फॉर द नट, हिल नट, यानी कि पहाड़ी हिल स्टेशन पे जो पहाड़ी बादाम होते हैं उसके लिए कहा गया है। यहाँ पे द वर्ड कर्नल एक्सप्रेस फॉर द सॉफ्ट पार्ट विद इन द हार्ड सेल ऑफ द नट विच इज़ ईटन, यानी कि जो उसका गूदा है वो भी पूरी तरह से पक चुका है अखरोट का। टू सेट बडिंग मोर्स, और यहाँ पे बडिंग एक्सप्रेस टू द कमिंग आउट ऑफ द न्यू बर्ड्स, नई नई कलियाँ खिलने लगी हैं। विद अ स्वीट एंड स्टिल मोर द लिटिल फ्लावर्स फॉर द बीज, और जो है बीज यहाँ पे मक्खियाँ जो है मधुमक्खियों के लिए हनी बी के लिए एक्सप्रेस किया गया है, वो क्या करने लगी हैं, मरनाने लगी हैं फूलों को किनारे किनारे। अंटिल दे थिंग्स वार्म डे विल नेवर सीज,
यहाँ पे वार्म्स डे यानी कि गर्मियों के दिन के लिए यूज़ किया गया है। Until they think the warm day will nurses here the whole lines means is that as bees are getting flower they think that it is still spring season and it will never come to an end। यानी कि ये जो स्प्रिंग सीजन है, जो उन्हें महसूस हो रहा है कि जो फूल खिले उनके तरफ चारों तरफ जो मंडराई वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। सीज यहाँ पे ख़त्म होने के लिए यूज़ किया गया है। फॉर समर्स हैज़ ओवर ब्रिम्ड देयर क्लैमी सेल्स। यहाँ पे फॉर समर्स, यहाँ पे समर्स में उसके साथ साथ ही गर्मी के दिनों में क्या हो रहा है, थ्रू द लॉन्ग्स एंड द वॉर्म्स समर यानी कि लंबे दिनों के कारण यानी कि गर्मी के, द बीज हैव कलेक्टेड द सो मच हनी दैट द सेल्स इन देयर हाइव्स आर ओवरफिल्ड। यानी कि मधुमक्खियों ने अपने छत्ते को पूरी तरह से ऊपर तक भर लिया है। यहाँ पे ओवर ब्रिम्ड यानी कि पूरा लबालब भर चुकी हैं। इन नेक्स्ट स्टैंजा द पाइट हैज़ पर्सनिफाइड द ऑटम। यहाँ पे पर्सनिफाइड किया है उसने ऑटम को, मानवीकरण के रूप में प्रेजेंट किया है। कह रहा है कि यहाँ पे ऑटम कैसे है। हु हैथ नॉट सीन द ऑफ एमिड दाई स्टोर। कह रही है हु हैथ नॉट, यहाँ पे कहा गया है पर्सनिफाइड करके। एमिड दाई स्टोर कहने का मतलब इन द मिडेस्ट ऑफ योर प्लेंटी आर द एबेंडेंस। और जो अपने खाद्यान्न के बीच में बैठा हुआ है, एमिड में बीच में बैठा हुआ है। समटाइम्स हु एवर सीक्स एब्रॉड में फाइंड। यहाँ पे इस लाइन का मतलब होवर गॉड गोज आउट टू सीक द स्पिरिट ऑफ ऑटम इन द ओपन कंट्री साइड। यानी कि खुले हुए जो है कंट्री साइड को एक्सप्रेस किया गया है। दी सेटिंग केयरलेसली ऑन द ग्रेंडी फ्लोर। और जो है केयरलेसली यानी कि बिना किसी परवाह के जो है अपने जो है उस खाद्यान्न के बीच बैठा हुआ है। हियर इज मीन्स द केयर फ्री, फ्री फ्रॉम द केयर्स बिकॉज गुड क्रॉप ऑफ कॉर्न एंड फ्रूट इज देयर। यानी कि वो निश्चिंत भाव से अपने जो है खेत में खाद्यान्न के बीच बैठा हुआ केयरलेसली। दे हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोविंग विंड्स। यहाँ पे विनोविंग विंड्स तेज चलने वाली हवा के लिए, ठीक है, विच हेल्प्स अ पीजेंट टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम चाफ। यानी कि जो भूसे से अलग करने वाली, दाने को अलग करने वाली हवा, यानी कि हवा बहुत तेज़ी से चल रही है। हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड यानी कि उसके जो बाल हैं इधर उधर हो गए हैं। सॉफ्ट लिफ्टेड लिफ्टेड सॉफ्टली एंड जेंटली, है ना। और विनोविंग तो पता है यानी कि जो है तेज़ हवा करने चलने वाली हवा जो ग्रेन को और चॉफ को अलग करती है एक दूसरे से, है ना। फिर जो है एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पे और ऑन अ हाफ रिब्ड फर्रोज साउंड स्लीप। यहाँ पे फर्रोज किसके लिए यूज़ किया गया है। फर्रोज इज यूज हियर, इट इज़ अ नैरो ट्रेंच मेड बाय द प्लग इन द सॉयल। कम इज़ अ प्लांटेड इन द फर्रोज। यानी कि कहने का मतलब कूड़, जो हल चलने से जो है धारियाँ बन जाती हैं, यानी कि गड्ढा हो जाता है और किनारे किनारे का भाग उभरा रहता है। कूड़ यानी कि जिसमें अनाज बोया जाता है, उसके लिए एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है। ऑन द हाफ रिब्स फॉरॉज ग्राउंड स्लिप। हाफ रिप्ड यहाँ पर द पोइट एक्सप्रेस दैट यानी कि आधी कटी हुई फसल के बीच में जो है वहाँ पर बैठा हुआ है। और जो है यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है एस्लीप यानी कि वो कुछ नींद की अवस्था में है, उसे नींद आ रही है, आलस्य लग रहा है। और देखिए आगे क्या कहा है इसमें, ड्रॉन्ड विद द फ्यूम ऑफ द पॉपीज वाइल दाई हुक। यहाँ पे जो है पॉपीज एक्सप्रेस किया गया है। अ प्लांट फ्रॉम हुज फ्लावर्स ओपियम सीज मेड, जिससे अफीम निकलती है उस पॉपीज के लिए, उसके लिए एक्सप्रेस किया गया है। यानी कि उसको नींद किसकी आ रही है, इसी की वजह से आ रही है, इसकी सुगंध से। वाइल दाई हुक्स, हुक्स यहाँ पे हंसिया के लिए यूज़ किया गया है। हुक्स सिकल के लिए, है ना, स्केच के लिए, हंसिया के लिए यूज़ किया गया है। और जो है उसे जब यूज़ कर रहा है स्पेयर्स द नेक्स्ट सॉथ, यहाँ पे स्पेयर्स में छोड़ देता है नेक्स्ट सॉथ, सॉथ एक्सप्रेस टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ द क्रॉप्स, यानी कि जो फसल की आगे आगे वाली लाइन को छोड़ देता है। एंड ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर्स, यहाँ पे ट्विन यानी कि छोटे छोटे कोमल फूल न कट जाए, इसकी वजह से वो उस पंक्ति को छोड़ देता है, यानी कि पकने से पहले न कट जाए, है ना। फिर आगे करने का मतलब फ्लावर्स विच आर ट्विनिंग आर कूलिंग राउंड द corn growing intertwined in the corn, poppy flowers grow in this manner in a wheat field। और यहाँ पे कहने का मतलब द रीपर्स डज नॉट कल द नेक्स्ट रोज ऑफ द कॉर्न, अगली फसल के
रो को इसलिए नहीं काटता है, वेयर पॉपीज फ्लावर्स और ब्लूमिंग, जहाँ पे पॉपीज के फ्लावर उगे हुए हैं। रीपर्स वॉज अबाउट टू कट डाउन दिस रो ऑफ कॉर्न बट ही फेल एस्लीप, यानी कि अभी उसे नींद आ रही है इसलिए वो नहीं काट पा रहा है उसे, और सिकल को है इन हिज हैंड, अपने हाथ में पकड़ा हुआ। एंड द स्लीप वॉज इंक्लूड बाय द स्मेल ऑफ द पॉपीज, और उसे नींद क्यों आ रही है, उसके पॉपीज की सुगंध की वजह से आ रही है ना। फिर उसके बाद आगे ये कह रहा है, फिर यहाँ पे अगेन ही हैज़ पर्सनिफाइड द ऑटम, कह रहा है एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर थाउट डिस्ट कीप, यहाँ पे ग्लीनर किसके लिए यूज़ हुआ है, ग्लीनर, ऑटम इज हियर पर्सनिफाइड एज अ ग्लीनर, यानी कि हु कलेक्ट द कॉर्न आफ्टर द रीपिंग, यानी कि जो है जो बची हुई फसलें गिरी हुई होती हैं उसे जो इकट्ठा करने वाला होता है उसे ग्लीनर यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है। स्टडली दाई लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रूक, और कैसे कर, यानी कि वो जैसे लग रहा है कि गट्ठर बांध के अपने सर पर रखकर, यानी कि बहुत ही केयरफुली से किसी भी जलधारा को पार करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे जो है देखिए स्टडली में बैलेंस्ड बना के एकदम, ब्रूक माने स्मॉल स्ट्रीममेट है ना, यानी कि छोटी स्ट्रीम धारा की, यानी को पार करने की कोशिश कर रही है ना। फिर यहाँ पे स्टडी दाई, यहाँ पे देखिए और बाई अ काइडर प्रेस विद अ पेशेंस लुक, और जो है काइडर प्रेस यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है, अ प्रेस और अ प्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट इन विच द राइप एप्पल्स आर प्रेस्ड सो दैट द जूस कम आउट, यानी कि यहाँ मशीन के लिए काइडर प्रेस यूज किया है जिसमें जो है एप्पल डाल के जूस निकाला जाता है। विद अ पेशेंस लुक, यानी कि बहुत, यानी कि जूस निकालने वाला बहुत उसे पेशेंस से गंभीरता से देख रहा है। द वॉचेस द लास्ट और जाइंग आवर्स बाई आवर्स, यहाँ पे कह रहा है आवर्स बाई आवर्स, यानी कि घंटों तक, यानी कि उस लास्ट बूंद को देखता रहता है, ओजिंग्स को, है ना, कि जो है जब तक ये एप्पल की ओजिंग्स में ड्रिपिंग स्लोली, बूंद बूंद जब तक रिसती रहती है ना, उसको जो है द लास्ट ओजिंग का मतलब द लास्ट ड्रॉप दैट कम्स आउट स्लोली, यानी धीरे धीरे आती है, उसे बहुत आवर्स बाई आवर्स, यानी फॉर आवर्स टुगेदर, बहुत देर तक ध्यान से देखता रहता है। एंड इन नेक्स्ट एक्सटेंजा ही हैज़ एक्सप्रेस वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग्स, इन दिस एक्सटेंजा ही हैज़ एक्सप्रेस दैट द स्प्रिंग लाइक अ स्प्रिंग ऑटम हैज़ इट्स इम्पोर्टेंट, यानी कि स्प्रिंग के समान ऑटम का भी एक इम्पोर्टेंस है। और ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कहने का मतलब सम पोइट्स एंड द क्रिटिक्स हैव ऑब्जर्व दैट किड्स शुड नॉट हैव रिटन दिस लाइन्स, ठीक है, कुछ बता रहा है, वाई शुड ही लॉन्ग फॉर द सॉन्ग्स ऑफ द स्प्रिंग व्हेन ऑटम हैज़ इट्स ओन बॉन्टी एंड म्यूजिक, यानी कि उसका भी बॉन्टी और म्यूजिक होता है अब एक तरह से, है ना। यहाँ पे आई यूज किया है यस के लिए, है ना, आई, है ना, आई वेयर आर दाई things not of them, here the word of line of these is meaning that autumn should not regret that it does not have the music of spring, उसे यानी कि पश्चाताप नहीं करना चाहिए कि उसके पास जो है स्प्रिंग की तरह म्यूजिक नहीं है। इन स्प्रिंग सीजन सो मैनी बर्ड्स आर सिंगिंग एंड चिपिंग, इट ऑल्सो देयर मेटिंग सीजन, है ना, इसके लिए एक्सप्रेस किया गया ना, दाउ हैज दाई म्यूजिक टू, उसके पास भी एक म्यूजिक है। वाइल्ड बियर्ड क्लाउड ब्लोन द सॉफ्ट डेइंग रेन, यहाँ पे बियर्ड क्लाउड यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है, देखिए किसके लिए, स्ट्रिक ऑफ द क्लाउड्स लुकिंग लाइक बार्स, यानी कि एकदम बिना बादल के जो है आसमान है, और जो है ब्लॉन्ड द सॉफ्ट डेइंग डे, और जो है सूर्यास्त हो रहा है, और उसके साथ साथ ही द एंड टच द ईस्ट बल्स प्लेन्स विद रोजी हिल्स, और जो सूर्यास्त होने से जो गुलाबी किरणें हैं जो पड़ रही हैं अनाज के ऊपर, उसे कैसा कलर में बना दे रही है, रोजे हुए गुलाबी रंग में बना दे रही है ना। फिर उसके बाद में है सॉफ्ट डे, यानी कि डे इज डे, ठीक है, सूर्यास्त होते के समय कमिंग टू एन एंड ऑफ स्लोली, धीरे धीरे अस्त हो रहा है ना। और कहने का मतलब, पूरे लाइन का मतलब ये है, वाइल बेयर्स bars of the clouds glowing the light of the setting sun touch with the soft warm glow and the light of the day which is gradually fading from the earth and the sky, है ना। आज जब अनाज पर पड़ रही है उसकी किरणें, सूर्य होते हुए अस्त होते हुए सूर्य की गुलाबी किरणें, तो अनाज भी गुलाबी हो जा रहा है। देन इन अ वेल फुल कॉयर द स्मॉल नेट मॉस, यहाँ पे जो है मोर्नफुल सॉन्ग, यहाँ पे नेट एक मक्खी के लिए यूज़ किया गया है, इसे बन मक्खी बोलते हैं, है ना।
अ टाइप ऑफ इंसेक्ट होता है एक तरह से, अ फ्लाई इन क्लस्टर इन, शाम के समय ये उड़ती है ना। और यहाँ पे कर्ज यूज किया जाए, कोरस ग्रुप ऑफ सिंगर्स है ना, कोरस उसके लिए यानी कि ग्रुप में वो सारी जो है मिलकर गा रही हैं। और वेलफुल का मतलब अ सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन एंड सोरो है ना, एक साथ एक ग्रुप में मिलकर सॉन्ग ऑफ सोरो एक्सप्रेस कर रही हैं। एंड द अमंग द रिवर्स सैलोस ब्राउन एलॉफ्ट, यहाँ पे सैलो एक तरह का बेटा पेड़ होता है, यानी कि छोटी, यानी कि नदी के किनारे ये उगते हैं, बीच में अंदर से ये खोखले होते हैं, सैलो होते हैं ना, उनके लिए यूज़ हुआ गया अमंग द रिवर सैलोस ब्राउन एलॉफ्ट। और क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जो है ब्राउन एलॉफ्ट मीन्स कैरिड हाई आर अपवर्ड, यानी कि ऊपर की तरफ जाती हैं ना। और सिंकिंग यानी कि द साउंड बिकम्स इनएडिबल, और जो है उनका आवाज़ सुनाई नहीं पड़ता है। और फिर लाइफ्स और डाइज एंड ब्लॉज आर स्टॉप्स, यानी भी कहने का मतलब, पूरे का मतलब द नेट्स आर टीनी इंसेक्ट्स, ये छोटी जो है होती हैं मक्खियाँ, विच और ईजली कैरिड हाई बाय द लाइट ब्रीज एंड कम डाउन व्हेन द ब्रीज स्टॉप्स ब्लोइंग, और जब हवा चलती है तो ऊपर उड़ती हैं और धीमी हो जाती है तो नीचे को चली जाती है ना। एज नेट्स फ्लोट इन द ब्रीज देयर टीनी विंग्स वाइब्रेट, और जब वो उड़ती हैं तेज़ी से तो उनकी वो जो पंख होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं रैपिडली से है ना। और जो है वेलफुल काइंड ऑफ म्यूजिक, और वो जो आवाज़ है उसको जो है यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है पोइट कि किस तरह लग रही है, वेलफुल या सोरोफुल जो है म्यूजिक नोट की तरह लग रही है। इज प्रोड्यूस्ड थे एज द मॉर्निंग एट द पासिंग अवे ऑफ द डे, और जैसे जैसे सूर्यास्त हो रहा है, दिन बीत रहा, उनका जो है गाना उन्हें सुनाई पड़ रहा है। और आगे ये क्या कह रहा है, सिंकिंग यहाँ पे है ना, आर सिंकिंग एज द लाइट विंड लाइव्स और डाइज, ये सब एक्सप्रेस किया गया उसके लिए। एंड फुल ग्रोज लैम्प्स, यहाँ पे लैम्प के लिए यूज़ किया गया है, चाहे आप बकरी के बच्चे को मान लीजिए या भेड़ के बच्चे को है ना। लाउड ब्लीड्स यानी मेमियार हैं फ्रॉम दिल्ली हेली बॉर्न, यहाँ पर ये जो है बोर्न यूज किया गया है, बाउंड्री आर लिमिट किसके लिए, भेड़ों के बाड़े के लिए यूज किया गया ना। और हेज क्रिकेट यहाँ पे ग्रॉस हपर्स के लिए यूज किया गया है ना। बोले हेज क्रिकेट सिंग्स एंड नाउ विद ट्रेबल सॉफ्ट, और जो है ट्रेबल सॉफ्ट यानी कि कहने का मतलब हाई पिचेज वॉइस यानी कि तेज़ आवाज़ में गा रहे हैं है ना। ट्रेबल्स इज़ द हाईएस्ट है ना, फीमेल आर अ बॉयस वॉइस। सो ट्रेबल्स कैन नॉट बी अ सॉफ्ट, यानी कि ये सॉफ्ट नहीं हो सकता है बल्कि हाई होता है पिचेज। हियर द पार्ट्स वांट टू से दैट द रेड ब्रेस्ट है ना, और यहाँ पे रेड ब्रेस्ट के लिए भी एक्सप्रेस किया गया है ना। देखिए कहा गया ना, ये द रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम द गार्डन क्रॉफ्ट, और रेड ब्रेस्ट यहाँ बुलबुल के लिए यूज़ किया गया है, रॉबिन के लिए है ना, वो उनके आगे की तरफ जो है रेड होता है ना, इसे रेड ब्रेस्ट बोला गया है ना। गार्डन और क्रॉफ्ट, और जो गार्डन क्रॉफ्ट मतलब अ पीस ऑफ द लैंड इनक्लोज्ड फॉर अ गार्डन, यानी कि किसी कोने में उसकी भी आवाज़ सुनाई पड़ रही है। और यहाँ स्वेलो ये भी वर्ड है, इसे अबाबी बोलते हैं हिंदी में है ना। एंड गेदर सेलोस ट्विटर इन द स्काईज, और जो है इकट्ठे होकर अबाबिल भी क्या कर रहे हैं, ट्विटर इन द स्काई, ट्विटर में ट्रिप कर रहे हैं। कहने का मतलब swallows gather in large numbers and twitters in the sky because it is time when they migrate to warmer place. They know instinctively that it is a time for them to go to warmer places.